In the name of Allah, who is the most beneficial and the most merciful, all dear guests and honorable teacher and my loving student, Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. On the behalf of Murshid School of Nursing and Midwifery, I warmly welcome all of you here, and it is my immense pleasure to have you all here. As you know that we all gather here to celebrate International Women's Day 2024. And International Women's Day is celebrated on every 8th March on every year globally. And this is the day is not only to celebrate the women's achievement in the world politically, socially and economically. It is the day of to raise the voice against the violence and abuse which is done against the women. And I would also like to share about that it also provides the platform and which raise the collective voice and advocating the women's right and empowerment. And today Murshid School of Nursing has honorably organized this program International Women's Day 2024, and I wish you all of you International Women's Day 2024. So formally I would like to start this day with the name of Almighty Allah. So for this I would like to invite Hamza, the student of generic 4th semester, for the recitation of some holy verses of Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. ए सबसे गुम्बद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए तो दीदार अता करना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. So now I would like to invite Rafia, the student of generic 1st semester, for Naate Maqbool sallallahu alaihi wasallam. ए सब्ज़ गुंबद वाली मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना. ए नूर खुदा आकर आँखों में समा जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना. ए पर्दा
नशीं दिल के पर्दे में रहा करना, जब वक्त नज़र आए दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना मेरे आका। रोशन मेरी तुर्बत को ए नूर खुदा करना, जब वक्त नज़र आए दीदार अता करना। ए सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़र आए दीदार अता करना, जब वक्त नज़र आए दीदार अता करना। So now we are going to start the program, this celebration. In this celebration we are going to have speeches, tableau, drama and poetry, and the teacher will share their thoughts regarding this day, and we will also have a word of thanks at the end of this program. So this is your day. So I wish you happy International Women's Day to all of you from bottom of my heart, and I believe that the women are the sign of life and the sign of love and unconditional love, and they are the sign of trust as well. And they are practical, they are spiritual, they are not only soft, they are strong as well. So I want to clap for all of you. So now for the beautiful speech regarding the importance of women, I would like to invite Husna Nawab. She is the student of generic first semester. Please come on the stage and share your. जनाब सदर, मेहमान खसूसी, मोहतरम असातिज़ा कराम और मेरे अज़ीज़ तालिब इल्म साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है वो है औरतों का आलमी दिन। अगर बज़्म हस्ती में औरत ना होती, ख़यालों की रंगीन जन्नत ना होती, सितारों के दिलकश फसाने ना होते, बहारों की नाजुक हकीकत ना होती। इससे पहले कि मैं आज के इन्वान का इंतखाब करूं, मैं अपनी टीचर्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि जिन्होंने वक्त की नज़ाकत का एतराफ़ करते हुए बहुत ही अहम मौजू का इंतखाब किया। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज से 1500 साल कबल वो माशरा जहाँ दख्तरकशी को जुर्रत और बहादुरी की अलामत समझी जाती थी, जहाँ माँ तो थी मगर काबिल एहतराम न थी, जहाँ बहन तो थी मगर काबिल इज़्ज़त न थी, जहाँ बेटी तो थी लेकिन काबिल रहम न थी, जहाँ बीवी तो थी मगर काबिल तौकीर न थी। ज़मानाए जाहिलियत में इस कदर जाहिलियत थी कि नौज़ायदा बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, लेकिन खुदाए वहदहु ला शरीक ने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया और उनके ज़रिए इन जहालत को ख़त्म कर दिया। और उसके साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को उनके बहुत से हकूक़ देकर उन्हें मर्दों के शाना बशाना करार दिया, यहाँ तक कि औरतों को इतना बुलंद मकाम अता किया कि जिसकी मिसालें हमारी तारीख़ इस्लाम में मौजूद हैं। जैसा कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बहुत ही कम उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से फैज़याब हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद अगर किसी सहाबा को कोई मसला दरपेश आता तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत करते और इसके बारे में पूछते और इल्म हासिल करते थे। इस तरह मैं यहाँ कुछ अशआर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पेश नज़र करती हूँ।
अपने कलम के लबों से मैं यहाँ बोलती हूँ, राज औरत के खल का मैं यहाँ खोलती हूँ। बिना आँखों के ज़माने का नज़ारा ही नहीं, इसी तरह बग़ैर ज़न के गुजारा ही नहीं। खल्क़ आदम हुए लेकिन खुशी शामिल ना हुई, जब तलक खल्क़त हवा मुकम्मल ना हुई। रुतबा औरत को खुदा ने वो अता कर डाला, उसके दामन में ज़िंदगी को ज़िंदा कर डाला। अजब किस्सा अफलाक है हैरत के सबब, वजूद मर्द भी मुमकिन हुआ औरत के सबब। अगर बेटी है तो रहमत है वो बाप के लिए, अगर बहन है तो इज़्ज़त है वो बाई के लिए, अगर बीवी है तो ईमान है वो शोहर के लिए, हाँ अगर माँ है तो जन्नत है वो पिसर के लिए। इंतहा अब मैं फ़ज़ाइल की करने वाली हूँ, जनाब फ़ातिमा ज़ोहरा पे लिखने वाली हूँ। है अपनी बाप की रहमत जो ख़ुद रहमत का इमाम, खुदा ने बेटा नहीं बेटी देकर बख्शा इनाम। शोहर उसका है कायनात में कुल ईमान, फ़ातिमा ज़ोहरा से उसका था मुकम्मल ईमान। हसन हुसैन है सरदार जवाने जन्नत, फ़ातिमा ज़ोहरा के पैरों में है उनकी जन्नत। इस्लाम में औरत को पर्दे में रहने का हुक्म है, क्योंकि हर कीमती शे पे पर्दा अच्छी लगती है। जैसे कि खाना काबा पर्दे में है, कुरान पाक पर्दे में है, इसी तरह औरत भी एक कीमती सरमाया है जिसके लिए पर्दा बहुत लाजमी है। क्यों हर एक से ख़ुद को है छुपाना वाजिब, क्यों नहीं सबको चेहरा अपना दिखाना वाजिब। खजाने को संभाल के रखाया जाता है, जो कीमती हो उसे ही छुपाया जाता है, जो कीमती हो उसे ही छुपाया जाता है। औरत के इज़्ज़त और एहतराम में तो बहुत सी लाइनें हैं, क्योंकि ये एक अजीम हस्ती है। लेकिन मैं अपने इन्वान का अख्तिताम कुछ इशार के साथ करना चाहती हूँ। सुनो औरत को खिलौना समझने वालों, जिसके नाम से है रौनक वो है औरत। तू जिसका बेटा है वो है औरत, तू जिसका बाप है वो है औरत। कुछ तो एहसास कर उस ज़ात का जिसका नाम है औरत, जिसके कदमों तले रखी है जन्नत वो माँ है औरत। तू जिसका बाप बनेगा वो है औरत, तू जिसका भाई है वो है औरत, तो जो कल तेरा नसीब है वो है औरत। कुछ तो एहसास कर उस ज़ात का जिसका नाम है औरत। Sometimes challenge is unidentified, but the main challenge is that they are being abused, they are being violated. So the violation and abuse which is done against the women, it should also be highlighted on that day, because that is why the students are going to perform a tableau which is called Azadi Kya Hai, because the freedom is not only particular associated with the one gender, it is for everyone. So now I would like to invite the student of CMW to represent their tableau Azadi Kya Hai. आज़ादी की जंग, आज़ादी दावे मेरी आज़ादी आज पढ़ी। आज़ाद है जीना मुझे, आज़ादी आज़ाद है रहना मुझे, बेखौफ आज़ाद है जीना मुझे, बेखौफ आज़ाद है रहना मुझे। आज़ादी क्या है? न्याय के मंदिर भी हो गए भंग, ज़माना चले ना चले, क्या है लड़ने चली हूँ आज़ादी की जंग। क्या कर रहे हो आप? जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो बात करके रख दिया है। तुम्हें मेरे लिए ही चुना गया था घर वालों ने। चले जाओ, वापस चले जाओ। ये है आज़ादी। इस तरह की रिप्रेजेंटेशन जब होती है, ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कहलाती है या विजुअल कहलाती है। इसमें कुछ चीज़ें अनहिडन थी। इसमें ये दिखाया जा रहा था, इट वॉज डिस्प्ले दैट हाउ द वीमेंस आर नॉट फ्री इन आवर सोसाइटी। किस तरह से उनकी फ्रीडम को रोका जाता है और उनकी भी ख्वाहिशें होती हैं, उनकी भी उम्मीदें होती हैं।
So that is the display was done by the student of CMW. Now we have one more drama. It will be represented by the student of generic first semester. Importance of women education. मुझे आगे जाना है. Please come on the stage. The student of generic first semester. ज़ब्त और दीगर शोबों में ख़वातीन के किरदार की अहमियत पर जोर देते हैं, लेकिन इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि औरत जिस शोबे में भी हो, मर्द इसके साथ कभी बाप, कभी बेटा, तो कभी भाई बनकर इसका साथ देता है। हमारा ड्रामा भी आपको कुछ इसी सूरत हाल से आगाह करेगा। सीन नंबर 1, एक बेटी जो खुशी खुशी अपने मैट्रिक के इम्तिहान में अच्छे नंबर आने की खुशी में अपने वालिदैन से अपने इम्तिहानात के बारे में मशगूल हो रही है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी अब्बू, देखिए मेरे कितने अच्छे नंबर आए। वालेकुम अस्सलाम। छोड़ दे पढ़ाई वढ़ाई, अब तुम्हारी शादी की उम्र होगी, शादी की तैयारी करो अपनी। आप उसकी हौसला अफजाई करने के बजाय उसकी दिलासारी कर रही हो। नहीं, मेरी बेटी पढ़ेगी और माशरे के लिए आला मिसाल कायम करेगी। सीन नंबर 2, कॉलेज में दाखिला होने के बाद इसका बेटी का पहला दिन। ओए होए, पढ़ने जा रही है, ये पढ़ोगी ये करो, ये हमारे माशरे के लिए आला मिसाल कायम करेंगी। सीन नंबर 3, शादी के बाद की मसरूफियात भरी जिंदगी के साथ साथ अपनी तालीम को भी जारी रखना। बड़ा थक गया हूँ मैं। क्या कर रही हो? रो रहा है कब से, चुप ही नहीं हो रहा। उसको चुप कल मेरा पेपर भी है। चलो इसे लाओ, मुझे दो, अपना पेपर याद करो, अच्छे नंबर लाने हैं। सीन नंबर 4, डिग्री हासिल करने के बाद एक बेटी जो कि उसका बाप उसका साथ देता है और जब उसकी शादी हो जाती है तो उसका शौहर उसका रखवाला बनता है, उसका साथ देता है। हमें भी इसी तरह ही आगे बढ़ना चाहिए और अपने जो भाई हैं उनसे इस चीज़ की बोलना चाहिए कि वो हमारे बहनों का साथ दें और उसको आगे बढ़ने में मदद करें, ना कि रोक टोक लगाएं कि आप पढ़ना नहीं है या बस शादी करो और शादी की ज़िंदगी गुजारो और बस घर पे काम ही काम करो। नहीं, बेटी का मतलब ये नहीं होता। बेटी पढ़ना भी चाहे तो उसको पढ़ाएं, लिखाएं और इस माशरे में आगे बढ़ाएं। The drama and you can say the play, the students wanted to show that how the women education is necessary. A good husband, a good brother and good father is always the helping hand to their daughters, to their sisters, to their wives and their mother as well. So now अब आप लोग भी चाह रहे होंगे कि स्टूडेंट्स तो बहुत ज़्यादा आ गए परफॉर्मेंस के लिए, आप किसी टीचर्स को बुलाना चाहिए यहाँ पे, ऐसा है या नहीं है? मुझे लग नहीं रहा आप लोग चाहते हैं कि टीचर यहाँ पर आए। So now I would like to invite for the very beautiful poetry regarding the औरत का हर एक काम इबादत. The poetry is औरत का हर एक काम इबादत. For this beautiful poetry I would like to invite Miss Rimsha Samuel. आप सबको इंटरनेशनल वुमेंस डे मुबारक हो। आप सब जानते हैं एक औरत अपनी ज़िंदगी के हर मरहले में बहुत सारी तकलीफ़ों के साथ गुजर रही होती है। जब वो माँ बनती है तो डिलीवरी के टाइम जो है मुख्तलिफ़ तकलीफ़ों से गुजरती है। जब वो बड़ी हो रही होती है तो घर में उसे ये ताने मिलते हैं, ये ना करो, वो ना करो। और जब वो स्कूल में जाती है तो स्कूल की लाइफ से ही उसके सर पर दुपट्टा दिया जाता है कि माशरा तुम्हें किसी और निगाह से ना देखे। और फिर जब शादी होती है, ससुराल में जाती है, तो वहाँ पर भी जो है बहुत सारे जो है डिफरेंट जो है टारगेट्स होते हैं एक औरत के पास, जिससे उसने डील करना होता है। अपनी मैरिज लाइफ को भी लेकर चलना होता है और साथ साथ जो है अपने बच्चों की परवरिश भी करनी है। और फिर मेरी अम्मी तो ये कहती है कि औरत की ज़िंदगी में कभी आराम भी नहीं होता। तो हम कंटिन्यू जो है 24 घंटे हर ईद पर जो है जो काम करती है वो औरत होती है। और जो है औरत जब नज़ाकत छोड़ देती है और मजबूती को थाम लेती है तो उस जैसा पत्थर भी जो है कोई भी नहीं होता। यानी जब तक वो नज़ाकत की उम्र में रहती है तब तक जो है वो खिलती भी है, मुस्कुराती भी है। लेकिन जब पत्थर बनकर सामने आ जाती है फिर औरत चाहे अकेली खड़ी हो चाहे माशरे में खड़ी हो, उसको कोई तोड़ भी नहीं सकता। सो प्लीज़ वार्मली क्लैप फॉर द वुमेन हू आर हियर। तो एक खूबसूरत सी शायरी है, किसी शायर ने लिखा है, तेरी हस्ती है ज़माने के लिए मशले राह,
तेरी हस्ती है ज़माने के लिए मशरे राह, तेरे कदमों के तले जन्नत फिरदौस भी है। तेरी हस्ती है ज़माने के लिए मशरे राह, तेरे कदमों के तले जन्नत फिरदौस भी है। ज़िंदगी तेरे लिए अज़मत मोराज भी है, ज़िंदगी तेरे लिए अज़मत मोराज भी है। आँख में नूर तो रंगों में हया बाकी है, ज़िंदगी तेरे लिए अज़मत मोराज भी है। आँख में नूर तो रंग में हया बाकी है। तीरा ज़हनों के लिए तेरी जला बाकी है, तीरा ज़हनों के लिए तेरी जला बाकी है। तुझसे कायम है ज़माने में मोहब्बत का चलन, दस्ते कातिल भी तेरे सामने लर्ज़ा लर्ज़ा, दस्ते कातिल भी तेरे सामने लर्ज़ा लर्ज़ा। तूने मंजिल को तराशा है जवां हिम्मत से, डट गई राह में हमेशा तू चट्टानों की तरह, डट गई राह में हमेशा तू चट्टानों की तरह। तेरा हर रूप वफा इज्जत और नामूस से बका, डट गई राह में तू हमेशा चट्टानों की तरह, डट गई राह में तू हमेशा चट्टानों की तरह। तेरा हर रूप वफा इज्जत और नामूस से बका। फिर भी हर दौर में मर्दों की अतायत की है, फिर भी हर दौर में मर्दों की अदायत की है। तूने इस तरह भी दुनिया में इबादत की है। शुक्रिया। हुमा हैदर एंड मिस महविश कि वो स्टेज पे आएँ और कुछ अपने थॉट्स को शेयर करें आपके लिए और आज के दिन के रिगार्डिंग। सो प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। सबसे पहले तो ख़वातीन का आलमी दिन बहुत मुबारक हो आप सब लोगों को। और ये एक अज़म होता है जो हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है कि हम जो है वो किसी भी मैदान में जो पीछे नहीं है। आपने हर जगह पे जो है वो अपना, जैसे कि मेरी बहुत मोअज़्ज़िज़ तालिब इल्मों ने और असातिज़ा ने जो है वो बहुत अच्छे अल्फाज में जो है वो इसको उजागर किया है। तो ये कि मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, बस एक बात याद रखें कि आपने जो है वो जो भी आपने अपना रोल अदा करना है माँ का, बहन का, और जो है वो जब आप बाहर निकलते हैं तो आपने अपने जो टास्क है उसको जो है वो मद्देनज़र रखना है। अगर जो देखिए ये जो बात होती है कि बहुत ज़्यादा लोग समझते हैं कि ख़वातीन अगर जैसे शादी के बाद, कुछ मैं अपना तजुर्बा शेयर करना चाहूँगी कि जो है वो हमारी ज़िंदगी भी काफ़ी टफ़ जो है वो दौर गुज़रा और एक दौर ऐसा आया कि बाहर निकलना पड़ा। 16 साल जो है वो घर के अंदर गुजारे, हाउसवाइफ गुजारे, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। जब मेरी बेटी मैट्रिक में आई है उसके बाद जो है वो मैंने जो है वो दोबारा से अपनी पढ़ाई का आगाज़ किया और उसके अंदर मुझको बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई। लोगों ने जो है वो बहुत ज़्यादा बातें बनाई कि जो है वो आप बाहर निकलोगी तो आपके बच्चों को कौन देखेगा, क्या होगा। और ये भी हमारे माशरे का एक अलमिया है कि अगर औरत जो है वो बेटी को जन्म देती है तो उसके ऊपर ये ताना दिया जाता है कि अरे बेटा नहीं है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत फ़ख्र के साथ इस बात को कहती हूँ कि मेरी 2 बेटियाँ हैं और अल्लाह ताला उनको सेहत ज़िंदगी अता करे आप सबको भी। और जो है वो बेटियाँ होना जो है वो कोई मायूब बात नहीं, आप उनको पढ़ाएं लिखाएं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मकाम पर है, शादियाँ हो गई हैं। तो ये कि आप जो है मतलब अपने आप को कभी भी कमज़ोर महसूस ना करें। आपके ऊपर जो भी देखिए अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो मुझे तो अलम नशरा सूरज जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो आप ये याद रखें कि अगर कोई मुश्किल कोई आपकी, देखिए इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में, कभी भी जो है वो कोई बंदा किसी को इज़्ज़त नहीं दे सकता और ना किसी को गिरा सकता है, हकीर समझ सकता है। तो ये बात हमेशा याद रखिए, हर कदम पे ज़िंदगी के हर मोड़ पर इस बात को अपनी गिरह से बांध लें कि आप जो है वो बहुत ही मोहतरम अल्लाह ताला ने आपको दर्जा दिया है और आपने इसकी हिफाजत करनी है और आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है दुनिया के सामने हर रूप में। तो ये कि मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सुरक्षित करे हर मैदान में
और इसी दुआ के साथ मैं अपनी तकरीर का अख्तिताम कर। औरतों का एजाज़ है, ठीक है। हमें जब दुनिया में हम आए तो हमारी कोई अहमियत नहीं थी, मींस के ज़माना जाहिलियत में अगर हम जाएं तो हमें कोई देखता भी नहीं था और ज़ाहिर है बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। तो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहचान दी, हमें इज़्ज़त दी, हमें हकूक़ दिलाए। उन हकूक़ को अब आपने अपने साथ लेकर चलना है। ये आपका पर्दा, आपकी हया, आपकी करियर में, आपकी गोल्स को अचीव करने में ये आपका जो है वो अहम किरदार अदा करता है। मींस आप इसके साथ भी आप जो है वो हर ऊंचाई पर जा सकते हो। ये नहीं कि आप जो है वो हिजाब करते हो तो आपको कोई जॉब नहीं देगा। आप जहाँ भी जाओ आपको कॉन्फिडेंस होना है। और दूसरा ये कि जब आप माँ बनते हो, एक हेल्दी माँ ही एक हेल्दी बच्चे को दुनिया में लाती है। तो जब आप अपने हकूक़ का एहतराम करेंगे, आप अपने आप को इज़्ज़त दोगे, आप अपने आप को जो है वो अहमियत दोगे, तो सब आपको अच्छी निगाह से देखेंगे, सब आपकी इज़्ज़त करेंगे। जब आप ही अपने आप को लो फील करेंगे कि हमारी तो कोई वर्थ ही नहीं है, हम तो लड़कियों की कोई अहमियत ही नहीं है, लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़कियां वो नहीं कर सकती, तो फिर आपको ज़माना भी उसी तरह ट्रीट करेगा। तो सबसे पहले आप अपने आप को जो है वर्थफुल बनाएं, ठीक है। अपनी हिम्मत, अपनी जो है वो ताकत, अपनी जो है वो अहमियत को समझें, ताकि जो है फिर ज़माने की कोई भी जंजीर आपको नहीं रोक सकती। आप दुनिया की जो है वो हर ऊंचाई को छू सकते हैं। बस इतना ही है कि आप अपने माइंड को, अपने जो है वो हार्ट को बिल्कुल प्योर रखें, ताकि आपके इरादे जो हैं वो आपको मजबूत और ऊंचाई तक लेकर जाएं। जब तक बेटा जो है आपका जब तक उसको वाइफ नहीं मिलती, लेकिन बेटी जो है माशाल्लाह, जिस तरह से मिस हुमा हैदर ने डिस्क्राइब किया कि माशाल्लाह शी हैज़ 2 daughters एंड आई हैव 4 daughters एंड आई कैन फील देयर लव एज वेल एज। जिस तरह से अल्लाह कहता है कि जब तुम्हारा बेटा पैदा होता है वो तुम्हारा बाजू बनता है, और जब बेटी पैदा होती तो मैं ख़ुद तुम्हारा बाजू बन जाता हूँ। तो इसी तरह से हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर औलाद की मोहब्बत की मिसाल मिलती है तो वो भी बेटी से मिलती है, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। तो और इसी तरह से इस्लाम के अंदर है कि माँ के तले जन्नत है। तो हमारे सोसाइटी में जो चीज़ें आप बुरी देखते हैं ये रिलीजन की वजह से नहीं होती, ये कल्चरल थॉट की वजह से होती है। दिस इज़ नॉट द एक्चुअली पीपल आर नॉट फॉलोइंग प्रॉपर रिलीजन एज वेल, कि व्हाट इज़ द मुकाम। इवन जायदाद में ख़वातीन का हिस्सा है, घर में हिस्सा है, घर की मलका करार दिया गया है। इवन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फर्स्ट वाइफ थी, शी वाज अ बिज़नेस वीमन, हज़रत खदीजतुल कुबरा, शी वाज द बिज़नेस वीमन। वो एक बिज़नेस वीमन थी। मतलब अगर औरत का काम करना ही मना होता या औरत के जॉब करना ही मना होता तो हमारे नबी क्यों एक ऐसी खातून से शादी करते हैं जो कि ख़ुद एक जो है बिज़नेस करती हैं। वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द एम्प्लॉय ऑफ हर, तो उन्होंने ख़ुद उनको प्रपोज़ल भेजा उनकी ईमानदारी की वजह से। तो इसी तरह से फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो उनकी ज़ौजा थी, अगर हम उनसे मिसाल लें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ खेला करते थे, दौड़ लगाया करते थे, उनके साथ तीरंदाजी किया करते थे। तो उसमें ये दिखाया गया कि एक मर्द जो है वो अपनी वाइफ के साथ भी उसके रवैये और उसकी तबीयत के मिजाज के साथ उससे डील करे। तो इसी तरह से जो है, जो हमारे माशरे में जितनी बुराइयां आप देखते हैं ये मज़हब का हिस्सा नहीं है, ये हमारे कल्चरल का भी वैसे हिस्सा नहीं है। ये जो है हमारी एक तरीके से आप उसको कह रहे हैं दौरे जहालत की कुछ चीज़ें जो हैं दोबारा वो आंसर हो जाती हैं। जब इंसान, वो कहते हैं ना, एक ख़ातून को पढ़ाने का मतलब है कि आपने पूरे ख़ानदान को पढ़ा दिया। तो कुछ अब अगर हम बात करते हैं कि ख़ातून के हक़ की, तो कहीं ना कहीं हम ख़ातून के किरदार, उनकी कोशिशों की भी बात करनी चाहिए। जब आला औलाद पैदा होती थी तो माँ भी उनकी आला ही होती थी। तो कहीं ना कहीं विमेंस की ही गलती है कि वो इस तरह की नस्ल, क्योंकि अगर एक बेटा ख़राब है तो वो भी तो किसी माँ के हाथ से पल कर आया है। तो इस तरह का भी कुछ चीज़ें देखें, हर पहलू, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी आपको नज़र रखना है कि अगर एक लड़का है, एक मर्द है, अगर वो औरत की इज़्ज़त नहीं कर रहा तो शायद उसने, अब लोग ये कहते हैं कि शायद उसका बाप उसकी माँ की इज़्ज़त नहीं करता होगा, लेकिन एक माँ भी तो परवरिश कर रही है। तो इस तरह अपनी परवरिश, अगर आप जब आगे जाके माँ बने तो आप इसके से ख्याल रखें कि मुझे इस माशरे को एक अच्छा बेटा भी देना है, इस माशरे को एक अच्छा मर्द भी देना है। ठीक है। सो नाउ आई वाज डिस्कसिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वीमेन। वैसे तो इसमें कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, हमारे पास वक्त इतना नहीं है। सो नाउ आई वुड लाइक टू इन्वाइट मिस हुदैबिया कि वो भी कुछ
शेयर करें आज के दिन के हवाले से, भले वो 2 लाइन कह दें, उनकी एक पार्टिसिपेशन हो जाए। और मिस नुसरत आप भी आ जाएं तो मेहरबानी होगी। हैप्पी वुमेंस डे सबसे पहले तो, और सबको औरत की आज़ादी सबको मुबारक हो, ठीक है। और हम सब यहाँ पे औरतें हैं, सब लड़कियाँ हैं, आगे चल के सब एक एक मुकाम पे पहुँचेंगी, ठीक है। तो बस यही कहना चाहूँगी कि हमें चाहिए कि हम भी खुद अपनी लाइफ जो है अच्छे से सरवाइव करने का तरीका हमें भी होना चाहिए, ठीक है, ताकि जब आगे चल के भी हम जो हमारी जनरेशन आएगी, न्यू जनरेशन जो आती है, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, एक औरत ही है, जो सर अकबर ने बात की कि एक औरत ही है जो तरबियत देती है, ठीक है। कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि अगर कोई बच्चा बिगड़ा होता है तो कभी भी उसको ये नहीं कहा जाता कि इसको बाप ने तरबियत दी है, हमेशा माँ का ही नाम आता है, एक औरत का ही जिक्र किया जाता है। तो अभी आप लोग जिस मुकाम पे हैं, मैं भी एक बच्ची की माँ हूँ, तो मुझे भी हर वक्त यही ख्याल रहता है कि इसकी ऐसी तरबियत करनी है कि कल को ये बोला जाए कि वाकई ये इसकी बेटी है। क्योंकि हम जब आगे अपनी जनरेशन की तरबियत करेंगे, जो हमें पीछे से मिला होता है, ठीक है, जो हमें हमारी माँ ने दिया होता है, जो हम लोगों ने जो पीछे घर में औरतों से सीखा होता है, वही हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो बस मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अपना प्रेजेंट भी अच्छा करें और आने वाले फ्यूचर के लिए भी अच्छा सोचें, और कभी भी अपने आप को डिग्रेड मत कीजिएगा कि हम जो हैं ये नहीं कर सकते। हमेशा ये सोचा करें कि इंशाल्लाह हम ये करेंगे, ठीक है। आज मैं सब बच्चों का शुक्रिया करूंगी कि एक दिन में उन्होंने बहुत काफ़ी सारी मेहनत की है, और उसमें ज़्यादातर जो है मैडम रीना का और बाकी टीचर का बहुत रोल है। तो सबके लिए क्लैपिंग करें कि एक दिन में बहुत बच्चों ने जो है मेहनत की है, अपनी स्टडी भी की है उसके साथ साथ। तो बाकी वुमेंस के लिए मैं ये बोलूँगी कि हमेशा जो है औरत का जो है आवाज़ दबाया जाता है कि औरत कहीं पे अपनी हकूक़ के लिए भी बात नहीं कर पाती। जहाँ पे तालीम की बात आती है वहाँ पे भी औरत को मुआशरा यही बोलता है, औरत पढ़ के क्या करेगी। घर वाले कहते हैं कि बेटी तो पराया धन होती है, और ससुराल कहते हैं कि बेटी तो ये तो पराए घर से आई है। तो हमेशा जो है औरत को इतना स्ट्रांग बनना चाहिए कि कहीं भी बाहर जाए, क्योंकि औरत हमेशा अनसेफ फील करती है, बाहर जाए कहीं भी ट्रेवल करे या कहीं भी किसी सफ़र में होती है तो अनसेफ फील करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का मुआशरा ऐसा है। तो आप इतना स्ट्रांग बने कि कभी भी आपको ऐसा फील ना हो कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आज का जो मेरा मैसेज है आप सबके लिए ये कि आप जो है हमेशा अपने हकूक़ के लिए हमेशा लड़ें। और हमेशा याद रखिएगा, इसका जब वुमेंस डे की बात आए या वुमेंस सेलिब्रेशन की बात आए तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपके जो बात सिर्फ जेंडर इक्वालिटी की है। वो चैलेंजेस आपको हैं, नो डाउट हैं, बहुत सख्त हैं, लेकिन एक विमेन जो है वो दूसरे विमेन की इज़्ज़त ज़रूर करें। हमारी सोसाइटी में विमेन को मसला मेल से नहीं है, सिर्फ एक विमेन को दूसरी विमेन को मसला है। भले हम कल्चरली देखें, सोसाइटल देखें, हम इकोनॉमिकल देखें, ये चीज़ें भी हैं। तो आप भी अपने जेंडर की बहुत रिस्पेक्ट करें, ठीक है। तो आप लोग अब मिसाल के तौर पर अगर सास है तो बहू, बहू है तो सास, और अगर भाभी है तो नंद, और नंद है तो भाभी, इस तरह से वो बात नहीं करनी, ठीक है। तो इसी लिहाज से आप लोग भी एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, ठीक है। जब आप अपने जेंडर को सबसे पहले रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो दूसरे जेंडर जो है वो अपोजिट जेंडर उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। सो क्लैप फॉर एवरीवन एंड थैंक यू वेरी मच मिस रीना एंड ऑल द टीचर एंड ऑल द स्टूडेंट्स। के बड़ा शॉर्ट नोटिस था, मुझे पता है ये प्रोग्राम बहुत अच्छा हो सकता था, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकते थे, क्योंकि एक दिन के नोटिस पे प्रोग्राम इसी तरह से होता है। लेकिन उस लिहाज से आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, आप लोगों ने यस तो कहा कि ये बहुत बड़ी बात होती है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हम आपको पूरा 1 हफ्ते का टाइम देंगे और हम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से वीमेंस डे बनाएंगे, जिस तरह से हमने लास्ट ईयर बनाया था, ठीक है। तो अगर जो नए स्टूडेंट हैं वो ये ना समझें कि मुर्शिद में वीमेंस डे इस तरह से बनाया जाता है और इस तरह से मनाया जाएगा। लास्ट ईयर बहुत, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा था। अभी आपको पता है डाउ की डेट शीट आ चुकी है, बच्चों के एग्ज़ाम है, जनवरी के सारे बच्चे टेंशन में हैं, उनके इम्तिहान होने वाले हैं। तो इसी वजह से, और 2 दिन बाद रमज़ान भी है, बड़े शॉर्ट पीरियड में टाइम मिला और मिस रीना और उनके साथ जितने भी टीचर्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया और इसको जो है मुमकिन बनाया। सो एट द लास्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस रीना जाहिद। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड फ्रॉम माय साइड हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू। And I'm here to thanks all of you on the behalf of our organization, obviously for your precious time.
कि यहाँ पर आप आए और आपकी मौजूदगी सबसे बेहतर सबूत है इस बात का कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया और इस इवेंट को आपने और बेहतर बनाया। तो इस इवेंट के बेहतर हो जाने के लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं आप सबके लिए। अपने लिए बहुत ज़ोर से तालियां बजाइएगा। देखिए कोई भी इवेंट कामयाब तब बनता है जब उसमें जो उसकी ऑडियंस होती है वो भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट करे। ऑडियंस का काम क्या होता है? बैठ के लोगों की हौसला अफजाई करना। तो आपने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है और लोगों की बहुत अच्छे से हौसला अफजाई की है, इसके लिए हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं आपके। ठीक है, और एक बड़ी बात आप लोगों के लिए कि आप सब औरतें और औरत होने का मतलब है कि आपका माशरे में सबसे अहम किरदार है। तो बी स्ट्रॉन्ग, जहाँ भी है हमेशा आपने दिखाना है कि आप किसी से कम नहीं हैं। बस एक क्लास में आपके लिए मैं एक कोट बोलना चाहूँगी, बी अ स्ट्रॉन्ग वुमेन सो योर डॉटर विल हैव अ रोल मॉडल एंड योर सन विल नो व्हाट टू लुक फॉर यू इन अ वुमन व्हेन ही इज अ मैन। बी अ वुमन।